أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کل ہم لوگوں نے اللہ کے وعلیکم فضل و اللہ وبرکاتہ. اس میں موصولہ شروع کیا اور اس میں موصولہ کا میں نے آپ کو ایک باہر سے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیا. آج ذرا سا گرامر کی طرف سے چلیں گے. اس میں میں پھر سے ایک بات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جن لوگوں کو گرامر اور اعراب سے دلچسپی ہے وہ لوگوں کے لیے یہ فائدے مند ہے. تو باقی لوگ سنو، لیکن جن کو پڑھانے کی طرف جانا ہے انہوں نے اس طرف دھیان دو. اور مجھے یقین ہے کل جس طرح سے آپ لوگ ترجمہ کر رہے تھے اس میں سے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، آپ پڑھیے، کوئی پڑھیے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. اب یہاں پر آپ ذرا غور فرمائیے اور سمجھیے کہ یہ جملے میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اور اس چیز کی بات کرنے کے لیے اس میں اگر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے وہ اسم میں، تو اسم کے اندر ابہام جو مبہم ہے، میں ڈاؤٹ ہے، کلیئر نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی صفت کی شکل میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں نے کل بتایا تھا 3 چیزیں کہ اس کا فارمولا کیا ہے. ایک بار دیکھ لیتے ہیں وہ پیچھے جا کے تو آپ کو آسانی ہوگی. ہاں، یہ میں نے آپ کے سامنے فارمولا رکھا. اب یہاں پر کوئی چیز ہے کہ اسم، ٹھیک ہے، یا جو بھی رہے گا اس کے پیچھے اسم ہوگا یا کوئی جملہ ہوگا، اس میں کا جو اسم کلیئر نہیں ہے اس کے لیے صلۃ الموصول اپنا اسم موصول لگایا جاتا ہے، اور اسم موصولہ کے بعد میں صلۃ الموصول آتا ہے. اور صلۃ الموصول 3 قسم سے آپ کل میں نے بھی بتایا تھا، آج بھی پھر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہوتا ہے. صلۃ الموصول کا مطلب سیدھی بات یاد رکھیے، ایک جملے کی شکل میں آئے گا، اس کو صلہ کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو جملہ اسمیہ آ سکتا ہے، اس کے بعد آئے گا وہ موصول کے بعد جملہ اسمیہ آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ آ سکتا ہے، اور شبہ جملہ آ سکتا ہے. 3 چیزیں آنے کی، جس میں سے سب سے زیادہ آنے کا کیا چانس ہے بولیے؟ جملہ فعلیہ. سب سے زیادہ کون آتا ہے؟ جملہ فعلیہ. اور کل حافظ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے آپ کو بتایا ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کے اسپیئر پارٹ کیا ہے بھائی؟ کام کا کرنے والا، اور جس پر کام ہوا وہ، اور متعلق فعل سے 4 چیزیں ہیں آپ کے پاس. وہ 4 چیزوں میں سے اہم چیز ہے فعل کا فاعل. جیسا میں آپ کو ابھی یہاں پہ ہی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اور آپ بالکل صاف سمجھ جائیں. یہ جملہ سمجھو ہم ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب یہ جملے کے اندر ہم کیا کریں گے، پہلے دیکھیں گے کس کے متعلق بات. ٹھیک ہے، الرجل ہے نا، ایک آدمی ہے ٹیچر. تو یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے. ایک آدمی انہیں ہے ٹیچر، ایک آدمی انہیں ہے معلم. تو دراصل یہ جملہ اگر اتنے ہی کاٹ کے نکال لی ہم نے اور اس کے اندر کا بیچ کا ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے، یہ ہمارا چلے. اپنے پاس اتنا ہی جملہ ہے. بڑی اب کیا ہوگا؟ The man الرجل هو معلم. is a teacher. The man
The man is a teacher. ठीक है, एक आदमी है, एक आदमी उन्हीं से टीचर। तो जरा देखिए इसकी अपन देखेंगे ये जुमला कौन सा किस्म का है। शुरू हो रहा है इसम से, ठीक है, तो इसम से शुरू होने वाला जुमला कौन सा होता है? जुमला इस्मिया होता है। अब जुमला इस्मिया में दो चीज मिलना जरूरी है। क्या क्या मिलना जरूरी है? मुब्तदा मिलना चाहिए और खबर मिलना चाहिए। तो ये मुब्तदा हमारे पास है और ये मारिफा है और मरफू है, और यहां पर एक ज़मीर लगाई हुई है हुआ। आपने पढ़ चुके हैं, अगर हमें ताकत पैदा करना है जुमले में तो इसको बोलते ज़मीर फसल, और ये लगाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? नकीरा कर देते ये इसको मारिफा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपन देखेंगे, बोलो एक आदमी है, बोलो एक आदमी है, तो खबर क्या है भाई? उन्हें है मौलिक, उन्हें है मौलिक, तो खबर क्या हो गई? उन्हें है मौलिक, एक आदमी उन्हें है मौलिक। ठीक है, तो ये खुद एक जुमला इसमें है। देखो ये मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रही है। ठीक है, तो ये ऐसा जुमला है, जुमला इस्मिया, जिसका मुब्तदा एक मारिफा इस्म है और उसकी खबर जुमला इस्मिया। ठीक है बेटे, यहां तक समझा क्या सबको? जी सर। और ये पूरी क्या है हमारी? खबर है। और ये कौन है? मुब्तदा। अब इसको बयान कीजिए आप। खबर अपनी मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन गई। लेकिन अगर हम खड़े रहकर बोल रहे हैं एक आदमी है टीचर और वहां पे 15, 20, 50 आदमी है, 15, 20, 50 आदमी है, अब उन 50 आदमियों में से कौन सा आदमी टीचर है कैसा बताएंगे आप? निशानदही कैसा करेंगे? तो उसके लिए हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, एक आदमी है टीचर, तो मेरे को आप पूछो कौन से आदमी के बारे में बोल रहे? सर बोलो, पूछो किस आदमी के बारे में बोल? वो आदमी जो टोपी पहना हुआ है, बोलो वो आदमी जो टोपी पहना हुआ है उन्हें है टीचर। आया समझ में? तो किसको क्लियर कर रहे हैं अपन? एक आदमी की शख्सियत क्लियर नहीं हो रही, वो शख्सियत क्लियर करने के लिए एक जुमला लगाया जाता है अल्लज़ी के साथ। 40 अल्लज़ी रुपए लेके का और अल्लज़ी के 40 रुपए साथ का 10 रुपए का वो 10 रुपए का लिटिल हार्ट्स 20 बॉर्नविटा। हमको भी जरा बॉर्नविटा पिलाओ ना, बाहर बात करो। तो क्या था भाई जुमला हमारा? ये एक टुकड़ा क्या है अपना पास में, पढ़ो सब लोग देख लो। अर्रजुलु, ये है हमारा असल में जुमला। ये इसके बीच वाले छोड़ दो, पढ़िए। एक आदमी, खबर क्या है? उन्हें है टीचर। एक आदमी उन्हें है टीचर, तो फिर सवाल कर कौन सा आदमी है भाई? तो अल्लज़ी, वो जो, अल्लज़ी का मतलब वो जो। अब यहाँ पे देखो ये देख रहा है अपने को, या से शुरू हो रहा है और पीछे पेश आ रहा है, गुजारे का सेवा है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? या तकल्लम, कलाम करता है, कलाम करता है। वो जो बोलता है, बोलो वो जो है बोल रहा, बोलता है, बोलेगा। तो ये टुकड़ा लगाने से हमारी बात का क्लेरिफिकेशन आ रहा है। यहां से ये जो सप्लीमेंट बांधे अपन ने, सप्लीमेंट है ये, किसको सप्लीमेंट बांध रहे? वो इसम को लगा रहे। क्यों लगा रहे? उसके अंदर का इबहाम मुबहाम दूर कर रहे, डाउट। जैसे कार चला रहे हो तो कार के स्क्रीन पर भाई ये कौन बदमाशी कर रहा है? हाँ, तो ये आदमी की शक्ल क्लियर नहीं हो रही, इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस आदमी को अपने को जो है ना क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट लगाना पड़ेगा। ऐसा आदमी बोलो जो बोल रहा है, उन्हें है टीचर। तो ये अल्लज़ी क्या हो गया भाई? इसमें
मौसूल है, मौसूल ये इसम है और मौसूल है। लाल वाला क्या है? इसम मौसूल है। मौसूल। और हमारा तरीका क्या है? इसम मौसूल के बाद क्या आना चाहिए? एक सिलातुल मौसूल आना। सिलातुल मौसूल। सिलातुल मौसूल बड़ा मुश्किल नाम लिख रहा, तो 3 चीजें आना चाहिए। क्या क्या आ सकता है? जुमला इस्मिया, जुमला जुमला फेलियर फेलियर, या शिब शिबु जुमला। जुमला। तो यहाँ पर जुमला फेलिया आ गया, आया ना? जुमला फेलिया है ना? अब जुमला फेलिया है तो कंफर्म करो सीगा कौन सा है। देखो या से शुरू हो रहा है तो गायब मुज़क्कर है, वाहिद है। अब वाहिद। इसका करने वाला कोई दिख रहा है क्या आजू बाजू? पेश वाला कोई दिख रहा है कि नहीं? नहीं है। तो फिर इसके अंदर कौन छुपी? जरा जरा गौर से देखो भाई, क्या बता रहा, क्या है? हुआ है। अब ये अल्लज़ी लेने की वजह क्या है? और अल्लज़ी ले रहे तो फिर ये हुआ की जमीन क्यों लाए? तो जरा चेक करेंगे। ये हुआ है, अल्लज़ी किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक मुज़क्कर के लिए, उन्हें भी हुआ है। और अर्रजुलु कौन है? तो इसके अंदर बैलेंसिंग देखी जाती है। जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं उन्होंने ये फार्मूला याद रखो। अब मैं जो लिख रहा हूं, सबसे पहले चेक किया जाता है इसको। कौन है भाई वो? मौसूल लाए अपन ने, गलत तो नहीं डाली है? हाँ, ये अर्रजुलो वाहिद गायब मुज़क्कर है, तो गायब वाहिद मुज़क्कर का मौसूल ला लिए, इन्हें हुआ है, हुवल्लज़ी। ठीक है। अब ये हुआ है और इसके अंदर जो बात बता रहे वो जो, तो इसके बाद इसके अंदर भी हुआ कुछ बात आना। अब वो जो जमा बोल देंगे तो नहीं जमेगा, है ना? तो यहां पे चेक करना, ये वर्ब है माशा, लेकिन इसका करने वाला कौन है? मुस्ततिर हुआ है। तो ये दोनों में मुताबिकत आना पहले। इसमें किसमें आना बोलो? नंबर दे दो इसको, 1 2। अब ये 2 जाके कंफर्म करना 3 को, उन्हें भी हुआ है। तो ये 1 2 3 ये जब कंफर्म हो जाएगा, अगर आप लिखे होते कोई जुमला तो आपको ये तीनों का ख्याल रखना पड़ा होता। अब बात समझ में आ गई? तो इसमें मौसूला के अंदर जुमला फेलिया आओ या जुमला इस्मिया आओ तो एक जमीर निकलेगी और वो लौटेगी किसके तरफ बात कर रहे हो। उसको इंग्लिश वाले बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। छोड़ दो, ते प्रोनाउन कोणाकडे वळायले, कोणाला हात आपण। तो उर्दू में इसको बोलेंगे, हमने पढ़े थे रजा पढ़े थे, रजा। अब रजा का मफूल बनाओ, मरजा। जीम आइन है, मरजा नहीं है, मरजा। तो इसका मरजा ये है, वाहिद है। ये जमीर लौट रही है अर्जुनी की तरफ। अब समझ में आया? यहां तक क्लियर होगा? आपके मुताबिक क्लियर होगा? यहां देखो मारिफा है तो इसका हुआ मारिफा निकल गया। यहाँ पे अल्लज़ी, इन्हें भी मारिफा है, इसका हुआ निकल गया। ये फेल है, फेल के अंदर भी हुआ है। तो ये तीनों में मुताबिकत है। हाँ, तीनों में मुताबिकत आ गई। अब आगे पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे और वो हाफिज साहब जैसा बताते आपको कि अब मुरक्कबात क्या क्या बन सकते देखेंगे। अब मुझे बताओ, अर्रजुलु मारिफा है नकीरा है? बोलो बच्चों, अर्रजुलु कौन है? मारिफा है, मारिफा है। मारिफा। इस पे लिख देंगे मारिफा। माशाल्लाह, आप बहुत स्मार्ट हो गए। मारिफा इसमें है, यानी कि अल वाला इसम। ठीक है। आयरानी हालत क्या है इसकी? रफा। रफा, क्योंकि इसमें पेश है। यहां तक का सब क्लियर है? अब उसके बाजू कौन बैठा देखेंगे। हाँ, बाजू कौन बैठा है? अल्लज़ी। अल्लज़ी कौन है? अल्लज़ी में पैदाइशी मारिफा है। मारिफा है। और अल्लज़ी मबनी है। अब मबनी है तो यहाँ पे इसके बाजू बैठा है, तो ये समझ के चलो कि इन्हें भी रफा है। क्यों? तो इन्हें रफा है तो इन्हें रफा है। अच्छा, इन्हें वाहिद है, इन्हें भी वाहिद है, इन्हें मुज़क्कर है, इन्हें। ऐसा 4 जब मिलते हैं, दिन मिलता तो क्या बनता?
मौसूफ सिफत, ये बन गए मौसूफ और ये बन गए सिफत। तो इतना इन्हें क्या बन गया भाई? सिफत है। अच्छा इन्हें अकेला है क्या? इन्हें अकेला नहीं है, इसकी फैमिली साथ है पूरी, तो ये पूरे मिलकर साले क्या बन गए? सिफत की शेपुट दुम। पतंग इन्हें है, पतंग के पीछे दुम, तो पतंग इस कहलाएंगी ना। पतंग की दुम क्या कहलाती? पतंग कहलाती है, धागा कहलाता है, पतंग इस कहलाती। तो ये पूरा जुमला सिफत है ये। तो इन्हें मौसूफ है, ये सिर्फ का कनेक्टर है, और यहां से यहां तक का ये पूरा जो दिख रहा है ना, तो ये बोलेंगे हम ये एक सिफत है। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये मुब्तदा है, और यहां से हमारी खबर चालू हो रही है, और खबर के अंदर पहले तो आ रहा है यहाँ पे जुमला फेलिया, और ये है जुमला इस्मिया। ये तमाम चीज मिलकर ये पूरी बन गई खबर, और ये बन गया मुब्तदा। तो बोलिए खबर अपने मुब्तदा से बन के क्या बन गया? इस्मिया। अब अगर बोलेंगे देखो एक आदमी है टीचर, ये तो अपना मेन है, ये पिलर है घर के, बीच का मटर बोलो। जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो बात कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मुख्य वाक्य नहीं है, उपवाक्य। माहिती ऐड कर, मायने बढ़ाने के लिए असल माल क्या है? एक आदमी है टीचर, बोले वो, अरे जो बात कर रहा है वो, आप समझे? राइट। तो अब इसी तरीके से आप मुझे बताइए, क्या ये आपको बर्दाश्त होगा ये ऑनलाइन? तुम यही सुना था। हाँ, इसी दर्स पर हम अब जो है पूरा पढ़ेंगे, और जिसको इतनी बारीक में जाना नहीं है वो ना जाए, लेकिन जो शौकीन है उन्हों सीखे। हाँ, क्या आप लोग तैयार है क्या भाई? जी सर। ये लोग हाँ, तो अब जरा देखिए, अब ये जुमले में अपने को देखना है कि सेंटेंस के मेन पार्ट क्या है, और कौन सा हिस्सा है जो डाउटफुल है, जिसकी निशानदेही नहीं हो रही, जिसकी क्लैरिटी नहीं है। तो पढ़ो, एक किताब मुदर्रिस की है, अपन बोलती है, बोलो किताब मुदर्रिस की है। अब स्कूल में सीख रहे अपन, स्कूल में बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हैं, सेमिनार है, किताब मुदर्रिस की है, तो बोल रहे कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? अरे भाई उसकी निशानदेही करो ना, क्लैरिफिकेशन करो। तो क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू है। स्क्रू कौन है? मौसूल। देखो अल्लज़ी, याद हो अल्लज़ी आया, मारो उसको, स्क्रू लगा दो। अब स्क्रू लगा के पीछे से जोड़ दो, जो टेबल पे है, जो टेबल पर। अब कौन आया यहाँ पे? अब कौन आया यहाँ पे? शुभ जुमला। अब जुमला नहीं है ना, इसमिया है ना फेलिया है। हाँ, अब आया समझ में? ये आइडिया ध्यान में रखो। क्या क्या सोचना, अरे वो इसम की वजाहत नहीं हो रही, किसका है समझ रहा नहीं है, तो एक सप्लीमेंट लगाना पड़ती। सप्लीमेंट लगाने के लिए स्क्रू होना, स्क्रू ड्राइवर होना, लगा दो। क्या लगा दिए तुमने? यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, किताब है, बोलो किताब होगा, किताब क्या है? अल्लज़ी अलल मक्तब मुदर्रिस। किताबों का है, मुब्तदा है, और ये क्या है? लिल मुदर्रिसी, मुताल्लिक है, खबर है, मुताल्लिक है, खबर है। इसके पास खबर नहीं है, तो इन्हें मुकद्दम अपना क्या बन रहा है? कौन सी खबर बन रहा है? मुताल्लिक कायम मुकाम खबर, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट खबर बन रहा है। और हमको बताना है भाई किताब की वजाहत नहीं हो रही, तो स्क्रू ड्राइवर लेके फिट करे उसको। अल्लज़ी, किताब वो जो, बोलो मेज पर है टीचर की, आप जमा। तो अब लोग कोई भी किताब उठाएंगे नहीं, टीचर किताब है, नहीं तो कोई भी ले नहीं पा रहा था। तो अब इसका जुमला का कैसा इजरा होता है देखिए। अल किताब एक मारिफा इसमें, अल लगा हुआ इसलिए मारिफा है, और पेश है इसलिए रफा है। अल्लज़ी ये पैदाइशी मारिफा है, और इन्हें यहां बैठा है तो इन्हें रफा हलक में, मुब्तदा के बाद बैठा है ना,
तो मुब्तदा के बाजू बैठेगा तो रफा ही रहेगा। तो ये दोनों में कुछ चीजें मेल खा रही, दोनों मारिफा मारिफा, दोनों रफा रफा, दोनों वाहिद वाहिद, दोनों मुज़क्कर मुज़क्कर, तो दोनों की जात कौन सी है? मौसूफ सिफत है। अब मौसूफ सिफत है तो ये सिफत है। अब ये सिफत को स्क्रू से अपने बाकी चिपका है तो पूरी खबर बन रही। ये पूरी असल में यहां से यहां तक का जो आ रहा है अब पूरी की पूरी बन रही एक शिफ्ट। ठीक है, बोलो किताब वो जो टेबल पर है टीचर, दो बार है यार, अपने बाप का क्या जाता। तो यहां पर देखेंगे आप तो जुमला इस्मिया इनसे बन रहा था, अब जुमला इस्मिया इनसे ही बन रहा है, लेकिन ये अल किताब यहां से यहां तक का क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। कहां से कहां तक मुब्तदा बना? किताब का एक हिस्सा यहां तक है, किताब वो जो टेबल पर है टीचर की। हाँ, तो अब बोलेंगे अब ये जुमला इसमें इसलिए है कि लिल मुदर्रिसी ये कायम मकाम खबर है और मुब्तदा इतना बड़ा है, ये दोनों मिलकर जुमला इसमें बन गया। पढ़ो, किताब है मुदर्रिस की, ये जुमला इसमें है और आगे का टुकड़ा जो है वो जो टेबल पर है। अब ये देखें, अल कलम, पढ़िए। अब देखो पूरा पूरा पढ़ लेना पहले, अल्लज़ी वाला छोड़ देना। القلم مكسور मकसूरुन। कलम है टूटी हुई, कौन सी? अल्लज़ी टूटी हुई फिल हकीकती वो जो है बैग में, कौन सी कलम? जो बैग में है। तो यहां से शुरू हो रहा अल कलमो मुब्तदा है और यहां तक का मुब्तदा बन रहा लंबा, क्योंकि तो ये अल कलमो क्या है? मौसूफ है, ये सिफत है, ये सिफत का एडिशन है, ये पूरा मिलकर क्लॉज बन रहा है। बोलो द पेन, बोलो द पेन विच इज इन द बैग इज ब्रोकन। पेन जो बैग में है टूटा है। in the bag आगे समझ में आपको? हाँ, पेन है टूटी हुई, कौन सी पेन टूटी हुई? वो जो बैग में है। ठीक है, तो वो जो बनने के लिए क्या होना? वो जो बनने के लिए इसके अंदर का हुआ है, इसके अंदर का हुआ है, सेम होगा। आया समझ? अब आपको जो है किसी भी जुमले का, कितना बड़ा भी जुमला है, एनालिसिस करने आता, आप समझे? तो अल्लज़ी हो अल्लज़ी ना हो जो भी रहेगा, उससे पहले आने वाले इसम के बराबरी के मुताबिक में आएगा। आगे चलो, पढ़ो अस्सय्यारतु लिल तबीबिल जदीदी। بالجديد अब यहां से ये पूरा अल्लज़ी का जो अल्लती फिल्लती रहता है निकाल के फेंक दो, कट करके फेंक दो और पढ़ो कार है नए डॉक्टर की, तो यहाँ पे मौसूफ सिफत है तबीब तबीबी अल जदीदी। ठीक है, दोनों मेल खा रहे। तो यहां तक अपना जुमला इसमें एक है, लेकिन बाहर खड़े रह के बोल रहे, किसी ने पूछा कारा बहुत है, तो हम बोले कार है नए डॉक्टर की। तो बोला कौन सी? ये तो मेरे को डॉक्टर साहब बोले उसमें से उस खेतों निकाल के लाओ, कौन सी डॉक्टर के? तो पढ़ो अल्लती क्यों आया? ये फीमेल है तो उसलिए अल्लती आ गया। मैं बोला ना हिया को हिया। हाँ, अब देखो खरजतु, बोलो खरजतु मिनल मुस्तशफा अल आन। हाँ, अब बोलो खरजतु का, खरजत का मतलब क्या है? निकली, निकली माफी है ना, औरत खरज, खरजा खरजा खरजो खरजत। तो यहां पर इसके बाद आया, क्योंकि जुमला फेली आ रहा है, तो जुमला फेली आया तो आपको फिर चेक करना पड़ता कि इसका करने वाला फाइल कौन है। तो फाइल फिर से हिया है, या छुपा हुआ है, और ये हिया इससे मिल रही, इन्हें इससे मिल रहा है, ये तीनों मिलकर बन गया एक गुच्छा। अब पढ़ो कार वो जो निकली हॉस्पिटल से अभी अभी। हाँ, ये क्या आ रहा? मिल से आ रहा, मुताल्लिक मिल फेल आ रहा है, और ये क्या है? एडवर्ब है, ज़र्फ है, इन्हें हमेशा नस्ब लेता है। तो बोलो कार वो जो निकली अभी हॉस्पिटल से
है नहीं डॉक्टर की। हाँ, अब हो गया डेफिनेशन तैयार। तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते करते करते सी। और इसके लिए तरीका क्या है, एक कॉपी लो, एक पेन लो और ये बना के देखो। तो कल आपको इसको सिखाने में, अच्छा इससे बड़े बड़े लोग डरते मालूम, घबरा जाते। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो याद रखो, स्क्रू ड्राइवर लेने का, फिट करने का, उसका क्लैरिफिकेशन भरने का उसको, हाँ, और उसके मुताबिक याद रखना। चलो, कार है डॉक्टर की, कौन सी कार है रे पूछे, वो जो अभी निकली हॉस्पिटल। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो, ये पढ़ो, अल कल्बु, कल्ब है कुत्ता। ठीक है, मरीज कुत्ता है बीमार। अब पूछिए कौन सा कुत्ता, बहुत कुत्ते फिर रहे। पढ़ो, अल्लज़ी फिल हदीक़ती, वो जो है गार्डन में। अब लगने लगी आप, इतना छोड़ दो, सब छोड़ो। फिल हदीक़ती मरीज, तो बोले फिल हदीक़ती गार्डन में का कुत्ता है मरीज, वो जो गार्डन में है मरीज, ऐसा बना, ऐसा भी बनाओ। अब खेलना शुरू कर दो। ठीक है, अब ये जुमला इसमें है लेकिन खबर में कौन है, फेलिया है। खबर कौन बैठी है, फेलिया। और सब मिलके क्या बन गया, खबर जब अपने मुब्तदा से मिलती है जुमला इसमें बन जाता है। हाँ, ये पढ़ो, अलफता, अलफता बोले तो नौजवान, टीनेजर। हाँ, अलफता इब्नो, हाँ, मुअद्दिनी, मौज़न साहब का बेटा। नौजवान, मौज़न साहब का, नौजवान है मौज़न का बेटा। बोलो, नौजवान है मौज़न का बेटा। कौन, पढ़ो, अल्लज़ी खरजा मिनल मस्जिद अलाना, खरजा निकला, जो निकला, जो निकला। चेक करो, अल्लज़ी हुआ है, अलफता हुआ है, खरजा में हुआ कि मुस्ततिर ज़मीर है। तीनों भी एक में को वो कार के वाइपर के जैसा वो मुताबिकत में आना, तीनों में। आगे, हाँ, अब ये पढ़ो। अब जरा यहाँ पे चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लगाए, तिलकल, हाँ, बत्ततु, बत्ततु बोला बदा, 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 हाँ, तिलकल बत्ततु, ये खुद एक, ये क्या है। अब तिलका मोहम्मद, के बाद में है क्या लगाइए, है क्या लगाइए बताओ। तिलका के बाद, तिलका के बाद लगाए तो आपने सुसाइड कर लिया समझो, बिल्कुल सुसाइड हो। मैंने कहा था है लगाने के लिए, अब रहा तो नहीं लगाना, नकीरा है तो लगाना, ये गले में ताबीज बना के डाल लो। क्या आइडिया दिया था मैंने, नकीरा के पहले लगाना, या नकीरा हिच नहीं, दोनों सेम है, तो ये इशारा मुशारू नहीं लेंगे। बोलो, जी जी, ये या वो बत्ता, हाँ, ली बिल्तिल फल्लानी, ये बतख है, ये बतख है फार्मर की, बेटी, किसान की। अब खाली बता रहे वो बतख है किसान की, तो कैसे समझेगा लोगों को। तो यहाँ बताएंगे, अल्लती तहतल शजरती, जो है झाड़ के नीचे, दरख्त के, वो बतख जो है झाड़ के नीचे, वो है किसान की। समझ में आ गया। अब तकरीबन आए तो वो आपको मजा लेना आएगा, खूब मजा लेना। अच्छा, कोई चीज फेंका फाकी करने की जरूरत नहीं, एक एक को अलग अलग निकालो, हाफिज साहब का फार्मूला डिग्री का लगाओ, और ये है डालना सीखो। अब यहाँ पे अगर आप अगर डाल दे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी है कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ है, क्योंकि ये मुरक्कब है, इशारी है, नाफिस है। ठीक है, काम नहीं है। बोलो, वो बदा जो झाड़ के नीचे है फार्मर की। हाँ, समझ में आ रहा बच्चा सबको। अच्छा, मैंने पूरा अंग्रेजी और उर्दू में सब लिखा है, आप ले लेके ये पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला पढ़ो, अल बैतुल जदीद। फिर ब्रेक मारो और देखो, यहाँ पे भी अल है, यहाँ पे भी अल है बैठता क्या इसमें, नहीं बैठता, नहीं, दोनों साथ में। नया घर,
नया घर हाँ, नया घर किसका है? वजीर का है। चल नया घर वजीर का है। वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर का है, अपना नुस्खा नहीं। हाँ, नया घर है प्राइम मिनिस्टर का। वो जो है जालिकल शारगी, यानी कि वो जो है वो रास्ते में। बोलो, द न्यू हाउस which is on the main street, that it street. belongs to the prime minister. वो घर जो बड़े रास्ते पे है, नए रास्ते पे है, वो रास्ते में है, प्राइम मिनिस्टर का है। जमरा मास्टर। हाँ, अदर्सो, अदर्सो सिंगल वर्ड है। हाँ, अब अदर्सो अगर इन्हें मुब्तदा है तो बाजू वाला क्या बनेगा? मौसूफ सिफत। हाँ, बोलो, अदर्सो सहलन जिद्दन, ये एडवर्ब है जिद्दन। सहलन का मतलब इजी, जिद्दन का मतलब वेरी इजी। द लेसन इज वेरी इजी, सबक है बहुत आसान। कौन सा? अल्लज़ी बादा हादा दर्सी, वो जो है इसके बाद का दर्स, इसके बाद का लेसन है बहुत। द लेसन विच इज आफ्टर दिस लेसन इज वेरी इजी। आगे समझ में? अब उर्दू में, इंग्लिश में और अरबी में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। अब आप जो है अरबी की न्यूज लगा के सुनो, समझ में आता। न्यूज, अरबी की न्यूज लगाओ, सुनो, आपको समझ में आ जाता। हाँ, ली सदीकी, ली क्या है? जारी, जा रहे। और सदीक क्या है? इसमें ई लगाए तो मेरा दोस्त। चलो पढ़ो। अब वहां पे एक नई चीज आ रही है, जरा क्या है देखो, हमजतुल इस्तिफाहम। आतिल कल, हाँ पढ़ो। हाँ, आके है क्या वो बैग? है क्या वो बैग? बोलो, है क्या वो बैग? आगे क्या कह रहा? पढ़ो। ले सदीकी, है क्या वो बैग मेरे दोस्त की? सवाल ये है क्या वो बैग मेरे दोस्त की? अब बैग आप बहुत रखे हैं बच्चों को, है क्या वो बैग मेरे दोस्त की? तो लोग बोले, कौन सी बैग बता रहा तू? पढ़ो, अल्लती तहतल मक्तबी, जो है टेबल के नीचे, लता तेरे लिए। या खालिद, है क्या वो बैग जो तेरे लिए है? तो अब बना लीजिए। अब यहाँ पे या खालिद तो क्या आ रहा? निदा मुनादा। देखो, या अब लखा तेरे लिए, है क्या वो बैग जो है टेबल के नीचे तेरे लिए है खालिद? है खालिद, तेरी है क्या बैग वो जो ये आ जा रहा पूरा टेबल के नीचे है? तो उन्होंने बोला ला, नहीं, हिया बैग के लिए है आ रहा, हिया ली सदीकी, हाँ, मोहम्मद, ये मोहम्मद के दोस्त की, मेरा दोस्त मोहम्मद है ना, उसके दोस्त की है ली सदीकी। तो पूरा डायलॉग में पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। आतिल कल हकीबतु अल्लती तहतल मक्तबी लका या हामिदुन। खालिद, आराम से पढ़ो। है क्या वो बैग जो टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है तेरी? आए खालिद? तो जवाब दिया खालिद, नहीं, वो है ली, के लिए। सदीकी बोल तो मेरा दोस्त मोहम्मद, मेरा दोस्त मोहम्मद, उसकी है ये। अब तमाम आपको सीखा हुआ ग्रामर इसमें घूम रहा है। चलो पढ़ो। तालिबु, हाँ, स्टूडेंट من الفصل الآن इंडोनेशिया, बोलो, إندونيسيا मेरा इंडोनेशिया, मेरा इंडोनेशिया बोलो, इंडोनेशिया। إندونيسيا तालिब इल्म है इंडोनेशिया का, स्टूडेंट इज फ्रॉम इंडोनेशिया। कौन सा? अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ल अलाना, जो निकला अभी क्लास से। तो एक बच्चा क्लास से निकला, तो दो स्टूडेंट्स अपने आप से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तालिब इल्म जो निकला क्लास से इंडोनेशिया का है, अभी जो निकला ना बच्चा, उन्हें इंडोनेशिया का, ऐसा बात कर रहे थे। आप देखो,
الکتاب یہ کرے ہم نے پہلے سے. کتاب ہے مدرس کی. کون سی کتاب؟ جو ٹیبل کے اوپر ہے. ذرا آپ کریے. لیمن کا مطلب کس کی؟ لیمن کا مطلب کس کی؟ روز کس کی؟ حاضل قلم کس کی ہے یہ قلم؟ کس کی ہے یہ خوبصورت قلم؟ دیکھو یہاں پہ جھٹ جھٹ جڑا دینا. علم لکھ رہا نا. القلم قلم الجمیل. کس کی ہے یہ خوبصورت قلم جو ہے المکتبی جو ہے ٹیبل پر. پڑھو. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشعر للوزیر. ہو گیا نا اپن پڑھنے والا. یہاں سے یہ بریکٹ چھوڑ کے پڑھو. البیت الکبیر للوزیر. ہاں اب یہاں تک کا یہ دونوں مل کر کیا ہو گیا؟ اشارہ مرکب اشاری. بڑا گھر ہاں وزیر کا ہے. وزیر کا. کون سا بڑا گھر وزیر کا ہے؟ الذی فی ذلک الشعر. وہ روڈ پہ جو ہے. اینالیسس ساتھ لکھ دیا میں نے پورا. پڑھو. من کا مطلب کون؟ من کا مطلب کون؟ من ذالک الرجل طویل الذی ہاں خرج الان من المدرستی. اب دیکھو کون ہے وہ آدمی. کون ہے وہ آدمی کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ لمبا آدمی. کون ہے وہ لمبا آدمی جو نکلا ابھی مدرسے سے؟ آگے سمجھ میں. کون ہے وہ لمبا آدمی جو نکلا مدرسے سے؟ جواب ہے ہوا مدیر الجدیدی. وہ ہے نیا ٹیچر. ٹھیک ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے نا ذرا سنو میری باتیں. مدینہ بک بول کے 3 بکس آتے ہیں. مدینہ بک 1 2 3. ابھی تک جو گرامر ہم نے پڑھے اس کے اندر ڈائلاگس بہت اچھے. وہ کتابیں لکھ دی نہیں تو میں آپ کو PDF بھیجتا ہوں. اس کو پڑھو تو آپ کی پڑھنا بھی آسانی ہوتی ہے. گرامر کو جب آپ بات کرنے میں لاتے ہیں تو پھر گرامر آپ کے دماغ میں بیٹھا. ٹھیک ہے. تو گرامر کا مزہ لو. اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ پڑھو. تو مدینہ بکس ون آف دا بیسٹ بکس. ٹھیک ہے. ہم نے سب کو یہ پڑھائی نہیں تھی تو آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اور میں نے ڈائلاگ شروع کرا تو کوئی ریسپانس ہی نہیں دی. تو بند کریں. میں شروع کرا تھا یہ کلاس. چلو پڑھو. الولد الولد طویل. تو ہو گیا یہاں پہ مرکب اشارے. the boy ہاں the یہاں سے آگے پڑھو. لمبا طالب علم. ہاں student from India. نیا لمبا طالب علم ہے ہندوستان کا. کون سا بھائی؟ الذی خرج من الفصل الانا. جو نکلا بھی بس. یہ آ گیا. ہم واپس آ گئے ہیں ہمارے فارمولے پر. ابھی تک جو پڑھے اس فارمولے کے تحت ہے. تو ریلیٹو پروناؤن آئے گا اس میں موصولہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا صلۃ الموصول. صلۃ الموصول مختلف شکلوں میں آئے گا. اب یہ جو ریلیٹو پروناؤن ہے موصول کیا کیا بنا؟ ابھی تک صفت بنا, مضاف الیہ بنے گا, مجرور بنے گا, مبتدا بنے گا, خبر بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک نہیں پڑھو آج. اتنا کافی آپ کے لیے. کل واپس اس کو آگے لیتا ہوں میں اور اس کو اور آرام آرام سے پڑھو. ٹھیک ہے. آئیے آپ شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये स्लाइड्स में के हम 3 आयतें कल हमने पढ़ लिए थे। पहली आयत अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन, अल्लाह जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सुतून के। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस समाई माअन, अल्लाह जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को। व अंज़ल मिनस समा, और उसने नाजिल किया आसमान से पानी। व हुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर, और वो जिसने पैदा किया रात को और दिन को और सूरज को और चांद को। ये 3 आयतें कल हमने पढ़े थे। अब आप में से जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं अपना रिएक्शन राइज हैंड करें, कल जैसा हम लोगों ने किए थे। कौन कौन पढ़ने वाले हैं? सर हमसे तो हो रहा नहीं। जी आप पढ़ लीजिए ये वाली आयत, 4 नंबर वाली आयत आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व हुवल्लज़ी खलक़ा मिनल माई बसीरन बशरन, बशरन। वह हर्फ है, अल्लज़ी मौसूला है, खलक़ा फेल है, मिनल माई माने से माने पानी, बसरन इंसान। वो है तो जिसने खलक, हाँ पानी से इंसान को पैदा किया। जी बहुत अच्छे, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। 5 नंबर वाली आयत पढ़ेंगे रेहाना बाजी। कौन? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, लहू उसी के लिए है जो जिसने आसमान और ज़मीन उसी के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने उनके लिए नहीं, जिसने नहीं, जिसने नहीं। हाँ, अब जिसको यहाँ पे जिसने या फिर जो, ये तर्जुमा हमको इसमें मौसूला के बाद आने वाले लफ्ज के मुताबिक करना है। अगर जुमला इस्मिया है तो फिर जो, अगर जुमला फेलिया है, माजी है, तो फिर वहां पे करेंगे जिसने। अब यहाँ देखिए लहू आए वाला है, ये हरफे जर है, तो शिबू जुमला हो गया यहाँ। अब क्या तर्जुमा होगा आप कीजिए, कोशिश कीजिए, शुरुआत से फिर पढ़ के कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी जो है, आप तुम्हारे लिए हाँ जो है आसमी, जी हाँ, दैट है। लहू लाम जबर ला है हम्म, और हा पेश हु है, तो लाम जबर ला, तो उसको चेंज कर देंगे लाम जेर ली, हरफे जर है। लाम जेर ली के मायने क्या है? के लिए, के लिए, और हु उसके लिए, उसके लिए। अब लहू के मायने उसके लिए, उसके लिए, और बाज मर्तबा उसके लिए लाम जबर ला या लाम जेर ली का तर्जुमा जो ओरिजिनल है उसके लिए है, यानी कि के लिए। बाज मर्तबा उसका तर्जुमा होता उसी का या उसका, उसके लिए या उसका, तो लहू के मायने है उसका। हाँ उसका जो हाँ आसमान में और जमीन में है। हाँ, लहू माफिस समावाती व माफिल अर्दी। अब लहू पहले शुरुआत हो रही लहू से, लाम जबर ला हरफे जर आ गया,
तो लहू दोनों मिलके हो गया मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी से कोई भी जुमला शुरुआत नहीं होती, और मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया के अंदर ना मुब्तदा बनता ना खबर बनता, वो कायम मुकाम खबर बनता। या तो कायम मुकाम खबर मुकद्दम हो जाएंगी, तो लहू तो पहले आ गया लहू, कायम मुकाम खबर मुकद्दम हो गई, पहले आ गया लहू, उसी का है। क्या है उसी का? माफी समावाती। अब माँ आ गया इसमें जी। मौसूला, जो कुछ जो कुछ अल्लज़ी आसमानों में के और जमीन अंदर, में। हाँ, अल्लज़ी के अंदर बंदिश है मुजक्कर की और वाहिद की। माँ के अंदर कोई बंदिश नहीं है मुजक्कर मोन्नस की और वाहिद तस्निया की। इसमें सारी चीजें आ गई माँ के अंदर, इसीलिए बोलते माँ तमाम अस्माए मौसूला की माँ है। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, जो कुछ उसी का है, जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो कुछ जमीन में है। जमीन में। जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अभी आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फिल अर्द। सर ये 5 हाँ, नंबर आयत में एक डाउट है सर। जी पूछिए। सर जिस तरह से अल्लज़ी लहू जैसे मफूल 1 2 3 होते हैं ना सर, तो इसमें जी अल्लाह की सिफत जो है अल्लज़ी लहू है, जी, तो उसी तरह फिर ये अल्लज़ी लहू 1, माफी समावाती 2 और वमा फिल अर्द ये 3 ऐसे है क्या सर? नहीं नहीं, हाँ सर, इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे बाज मर्तबा देखिए जुमले के अंदर, अभी जैसा इसमें मौसूला है, इसमें मौसूला के बाद 3 चीजें आना चाहिए। एक है जुमला इस्मिया, दूसरा है जुमला फेलिया, और तीसरा है शिबु जुमला। अब शिबु जुमला बाज मर्तबा ऐसा होता जो कि सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब जारी होता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वहां पे मुब्तदा भी हज़फ, खबर भी हज़फ। तो ये लहू माफी समावाती ये हो गया इसमें मौसूला के बाद का शिबु जुमला। अच्छा, जी, ठीक, थैंक यू सर। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। अल्लाजी फिर से आया इसमें मौसूला, अब उसकी सिफात बयान के लिए, उसी का है। हाँ, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। आयत नंबर 6 पढ़ेंगे, नसीमा अब्बास। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफा फिल अर्द। वही है जिसने जाला बनाया तुम्हें तुम्हें खलीफा फिल अर्द जमीन में। बहुत अच्छे। फिर से इसमें मौसूला और उसके बाद आया जुमला फेलिया, तो पूरा जुमला फेलिया, फेल फाइल मफूल तमाम के तमाम मिलके अल्लाजी का क्या बना? वो सिफत बन गई। बहुत अच्छे। 7 नंबर वाली आयत पढ़ेंगे, मोमिन हबीबा। जी सर। सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। सुबहानल्लज़ी, पाक है जिसने बनाया जोड़े, कुल्लहा सब है, तमाम। तमाम, हर चीज का जोड़ा। हर चीज का जोड़ा। सर मैं अच्छे से बांध लिख लूं। चलिए इसके बाद और कौन है पढ़ने वाले? कुछ भी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। जी, कौन सा पर ये अल्हम्दुलिल्लाह लजी पर ये फर्स्ट हाँ, वाली पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट वाली जी पढ़ना है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह लजी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाती। अल्हम्दुलिल्लाह लजी, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने खलक़स समावाती बनाया आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, वजअला और बनाया ज़ुलुमात अंधेरों को। जी, जी बहुत अच्छे। चलिए अभी 2 नंबर वाली आयत, सेकंड नंबर वाली कौन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे। पढ़िए। हुवल्लज़ी
انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین هو الذی وہی ہے جس نے انزل نازل کی سکینت فی قلوب دلوں میں المؤمنین مومنوں کے. بہت اچھے. فی قلوب المومنین. قلوب المومنین کوئی مرکب ہے کیا؟ مرکب جاری ہے. قلوب المومنین فی قلوب نہیں. دلوں اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. قلوب یہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اور المومنین یہ حالت جر میں ہے، تو قلوب المومنین ہو گیا جر میں ہے. مرکب اضافی. اور یہ اضافی. مرکب اضافی پورا مل کے فی حرف جر کا اس میں مجرور بن گیا، تو وہ ہو گیا مرکب مجرور. اشاری. چلیے بہت اچھے. چار جی ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ پڑھیں گے 3 نمبر والی آیت. ساجدہ بیگم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو 7 دنوں میں. 7 کہاں سے لائے اب؟ 6 دنوں میں. 6. ہاں سوری ستہ یعنی کہ 6 6 ایام میں. 6 6 ایام میں. ایام میں. جی بہت اچھے. چلیے اس کے بعد 4 نمبر والی آیت کون پڑھنے والے ہیں؟ رئیس فاطمہ پڑھیے. جی سر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمنون. وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو، فمنکم تم میں سے کافر اور تمہیں میں سے مومن. ہاں تم میں سے کافر نکرہ آیا، تم میں سے کچھ کافر ہاں اور تم میں سے کچھ کچھ مومن. مومن. چلیے بہت اچھا. اس کے بعد 5 نمبر والی آیت اب کون پڑھیں گے؟ الذی جعل لکم الارض. نہیں، جس نے بنایا جو تمہارے. لوگ پڑھ لیے وہ نہیں پڑھیں گے، رکنا ہے. الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا. اب پورا ایک ایک لفظ کے حساب سے ترجمہ کیجیے آپ. الذی جس نے جعل بنایا لکم تم سب کے لیے الارض زمین کو، جس نے تم ہاں سب کے لیے زمین کو بنایا. بہت اچھے. چلیے 6 نمبر والی آیت کون پڑھنے والے ہیں؟ میں پڑھوں سر؟ آپ پڑھے نا ابھی. ہم پڑھتے سر. ہم پڑھیے. پڑھنا سر. ہاں پڑھیے، ہم پڑھیے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جس نے اطعمہم تم کو کھلایا، تم سب کو کھلایا. تم سب کو کھلایا. تم سب کو کہاں سے؟ اطعمہ ان سب کو یعنی کہ سب ان سب کو. ہاں ان سب کو کھلایا بھوک میں. ہاں ہاں اور آمنہم امن دیا من خوف میں. ہاں خوف سے. خوف سے. جس وہی نے ہے کھلایا ان سب کو بھوک میں. بھوک جس نے بھوک کھلایا سے ان سب یعنی کو کہ بھوک کی حالت میں. ہاں بھوک کی حالت میں. وآمنہم من خوف، اور امن دیا ان سب کو خوف کی حالت میں. حالت میں. خوف سے. بہت اچھے. اچھا یہ جو اطعمہم ہے یہ ایک فعل ہے. یہ جی سر. فعل روزانہ 3 مرتبہ استعمال ہوتا، ہمارے پڑھنے میں آتا. بعض جی لوگوں کو 4 مرتبہ آتا، بعض لوگ 2 مرتبہ پڑھتے. تو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ فعل؟ کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. دعا سنائیے ایک مرتبہ. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہاں
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी أطعمنا وسقانا وجعلنا अतआमना وسقانا वसक़ा وسقانا وجعلنا وجعلنا वजअलना من المسلمين من المسلمين مسلمين. अब यहाँ पे ये दुआ है खाना खाने के बाद की, जिसमें फेल कितने इस्तेमाल हुए? أطعمنا وجعلنا अतआमना जअलना, ये 3 फेल इस्तेमाल हुए। और अगर हम इसको देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है और शुक्र अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी अतआमना, जिसने हमें खिलाया हम सबको, जिसने खिलाया हमें। वसक़ा ना, और जिसने पिलाया हमें। वजअलना, और जिसने बनाया हमें। मिनल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमानों में बनाया। ये जो अतआमना फेल है, इसके अगर हमजा शुरू में है, ता आइन मीम इसका मादा है, मीम के ऊपर जबर है। अतआमा, ये अतआमा के मायने हो जाएंगे उसने खिलाया, मतलब खिलाया, उसने खिलाया। अगर ये मीम के ऊपर जज़म दे दिए, अतआमना, हमने खिलाया। एक हरकत की वजह से क्या मायने में तब्दीली आ रही? उसने खिलाया हमें के बजाय हो जा रहा हमने खिलाया। और फिर ये वजअलना है, जीम पे जबर, आइन पे जबर, लाम पे जबर। अगर यहाँ पे जज़म दे दिए तो जअलना यानी कि हमने बनाया हो जाता। तो ये 2 हरकत को गौर करना है, बहुत ज्यादा तवज्जो दे के हमको खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ना है, वरना फिर उल्टा मसला हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना वसक़ाना वजअलना। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वजअलना, यानी कि हमने बनाया हो जाता। तो वजअलना, लाम पे जबर के साथ पढ़ना है, वजअलना मिनल मुस्लिमीन। या फिर अगर आप निकाल भी दिए, वजअलना मुस्लिमीन, दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते। सर ये जाअलना है सर। सर एक मिनट, जाअलना तीनों अगर जबर है तो उसने खिलाया हमें होगा। हाँ, और उसको जज़म दिए तो हमने खिलाया, उससे ऐसा होता क्या कि खाली हमने उसे नहीं होता, खाली हमने खिलाया, बस सिर्फ हमने खिलाया होगा। अगर वजअल ना हो आता तो फिर हमने खिलाया उसे हो जाता। तो हो नहीं है, उसके मायने बदल जा रहे कि हमने खिलाया। बस इतना ठीक है, हाँ बस इतना ही है। तो ये खाली मायने में तब्दीली ये आ रही कि सीगा बदल जा रहा, हमने खिलाया, हमने बनाया हो जा रहा, और यहाँ पे हो जा रहा हमने खिलाया हो जा रहा। फिर वो लोगों की बात के वैसा आ जाता है, अल्लाह तूने खिलाया मैंने खाया, किसी के बाप का नहीं खाया। तो वैसा बस जो हरकत है उस पर ध्यान देके पढ़ना है। जी और कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। जी वो पूछ रही थी मैं कि जैसा उसने बनाया और उसको हमने बनाया, ऐसा तो जैसा उसने बनाया हमको, हमने बनाया उसको, ऐसा होता क्या? पूछ रही थी मैं। नहीं, उसका अपोजिट नहीं होता, खाली ऐसा होता। हाँ, खाली ऐसा होता, हमने बनाया, उसको नहीं आता, हमने बनाया। हाँ, उसके लिए फिर आगे हु लगाना पड़ता। जअलना
Translation. और कोई सवाल कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। Sir, क्या translation? Hello. من أطعمني. واسقي من سخاني. یہ ایک دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یہ دعا کون سی ہے؟ جب کوئی اگر دعوت کوئی میں جا کے کھلے ان کے حق میں دعا کرنا شکر ہے. خالق کا ادا کر آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. ہاں، یہ جو آخری حکم تک جو بے ضرب کھاتے دعوت میں جا کے وہاں پہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یعنی کہ اگر کسی نے بھی ہم کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں یہ دعا پڑھنا ہے. یہ تو دعا پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا پڑھنا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اب اس کے معنی دیکھیے، اللہم اے اللہ، اطعم یہاں پہ ہے اطعمنا، اس نے کھلایا ہمیں. یہ اطعما فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اسی کا فعل الامر ہے اطعم، یعنی کہ تو کھلا. من اطعمنی، من، اب یہاں پہ جو من آیا وہ ہے اس میں موصولہ. اطعما، من اطعما، جس نے کھلایا، نی مجھے، اے اللہ تو کھلا اس کو جس نے کھلایا مجھے، واسقی اور تو پلا اس کو، من سقانی جس نے پلایا مجھے. تو یہ بھی دعا تو وہ میم کے نیچے دعوت میں کھانا کھانے کے بعد دعوت پڑھنے کی. آپ اس کو من پڑھ رہے اور لکھا ہوا میم کے نیچے زیر ہے آپ کے سم من. اچھا سوری، من 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 ہے، وہ غلطی سے لکھنے میں آ گیا. سر دعوت میں پیٹ بھر نہیں کھانے کھائے گا سر. سر دعوت میں نہیں کھائیں گے نہیں، میں نہیں بولتا، نہیں تو بولیں گے سر نے بولے دعوت میں پیٹ بھر کے کھانا ہے تو کھاؤ. چلیے اب ہم آگے بڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے 4 یا کچھ سلائیڈز ہم نے پڑھے، جس میں آیتیں ہم نے پڑھے، اس کا ترجمہ کیے، تو آپ تمام لوگ بہت الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیے، اس کا گرامر بھی دیکھے، جس کے اندر جملہ فعلیہ کی پریکٹس ہوئی اور اس میں موصولہ کی پریکٹس ہوئی. جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے فعل، فاعل اور مفعول نکال دیے، اور متعلق فعل بھی ہم نے پہچان لیے، تو وہ پریکٹس ہم نے الحمدللہ کر دی ہے. اب یہ ایک سلائیڈ ایسی ہے جس میں ہم کو پہچاننا ہے کہ جملہ کون سا ہے اور مرکب کون سا ہے. یعنی کہ بعض مرتبہ قرآن کے اندر ایسے جملوں میں بہت زیادہ کنفیوژن بھی ہو جاتا کہ یہ 2 الفاظ کے اندر یا وہ جملہ ہے یا پھر فریز ہے. جیسا ہم نے دیکھے جملہ فعلیہ اگر ایک لفظ کے اندر پورا کا پورا ایک جملہ ہے اور اس کے اعرابی حالت کے اعتبار سے ہم کو پہچاننا ہے. اب شروعات میں دیکھیں گے نمبر 1 پہلے نمبر پہ ہے یہاں پہ بسم اللہ. بسم اللہ کا ہم نے تسمیہ کا پورا ٹرانسلیشن ہم نے کیے تھے، تو بسم اللہ ہمارے لیے آسان ہے. بازر بھی یہاں پہ حرف جر ہے، اور اسمی، تو بسمی یعنی کہ نام کے ساتھ، اور بسم اللہ اسم کے اندر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور اس کے بعد آنے والا اللہ جو اسم ہے وہ حالت جر میں ہے. تو دونوں مل کے ہو گیا مرکب اضافی. اور بازر بھی کے ساتھ پہلے مرکب جاری اور پھر دوسرا ہے مرکب اضافی. تو معنی کے اندر ہو جائے گا اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ ایک فریز ہے، ٹھیک ہے.
उसी तरीके से नंबर 2 पे अब हमको पहचानना अंबिया अल्लाही, ये क्या है? अभी सर मुरक्कबे इजाफी इजाफी है। अंबिया नबी की जमा है अंबिया, और अंबिया फिर यहाँ पे ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, तो ये मुजाफ बनने के काबिल है। और उसके बाद आने वाला इस्म हालत जर में है तो कंफर्म हो गया मुजाफ मुजाफ इलैहि, ये हो गया मुरक्कब इजाफी, यानी कि अल्लाह के अंबिया। उसके बाद नंबर 3 है कतला दाऊदू, ये जुमला अब है ये क्या जुमला है? फेलिया सर। जुमला फेलिया है, क्योंकि पहला लफ्ज यहाँ पे 3 हर्फ वाला है, तीनों के ऊपर भी जबर है, तो ये बनावट के एतबार से फेल है और जमाने के एतबार से फेल है माजी है, और सीगे के हिसाब से ये पहला सीगा है। और पहला सीगा यानी कि हुआ वाहिद या मुज़क्कर ये गायब। दोनों के सीगे में, हाँ, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे में फाइल यानी कि करने वाला हालत रफा के साथ बाहर आ सकता, तो उसके बाद आने वाला जो लफ्ज है दाऊदू, ये जाहिर हालत है, रफा में है, तो ये हो गया इसमें जाहिर। जाहिर तो है। दाऊद है तो नबी का नाम है, इस वजह से दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। उसके बाद 4 नंबर है इत्तखज़ल्लाहु, जुमला फेलिया सर। ये भी जुमला फेलिया है। इत्तखज़ा एक फेल है, वो भी फेल माजी है, और पहला वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अल्लाहु हालत रफा में है तो फाइल हो गया, अल्लाह ने बना लिया। उसके बाद है 5 नंबर पे किताब अल्लाही, मुरक्कब इजाफी है, किताब ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है। उसके बाद में हालत जर में एक इस्म है, तो दोनों मिलके हो गया मुरक्कब इजाफी, अल्लाह की किताब। फिर उसके बाद है वमा कफर सुलैमानु, जुमला फेलिया निगेशन में सर। जुमला फेलिया जुमला फेलिया है, मनफी है, बहुत अच्छे। कफरा फेल है, पहले माजी है, उसके पहले माँ आ गया, तो माँ आने की वजह से ये माँ इनकारिया है, नफी है, तो माँ कफरा यानी कि उसने इनकार नहीं किया। और फिर ये पहला सीगा है तो इस्मुल फाइल बाहर, जो इसमें जाहिर है हालत रफा में बाहर है, सुलेमानो पेश है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। अच्छा, ये जो माँ है, माँ कफरा फेल है, फेल माजी है। ये जो माँ है, ये माँ मौसूला भी हो सकता, इसमें मौसूला भी हो सकता, जिसने कुफ्र किया या जिसने इनकार किया हो सकता ना जी। उसकी पहचान क्या है? उसका वो माजी के पहले आता है नसब देता फिर उन्हें कुछ भी नहीं है, सिंपल नसब देता हुआ, जुमले के मायने के एतबार से समझ में आ जाता हुआ कि ये इसमें मौसूला है या माँ मौसूला है। अच्छा, तीसरा एक माँ और एक है जो सवालिया है, क्या उसकी भी पहचान है? तो माँ मौसूला की कोई पहचान नहीं है, वो जुमले के एतबार से पहचाना जाता। अलबत्ता जो सवालिया माँ है कि क्या, उसकी एक पहचान है, उसके बाद हमेशा दा लिख के आता, जाल अलिफ, माजा, माजा, माजा पीने का अपना वो नहीं कोको कोला वाला, ये माजा है, माजा। हाँ, मा तफालू, तो जो तू करता है, मा तफालू, और माजा तफालू, तू क्या करता है, तू क्या क्या करता है, माजा, ये आता सवाल के लिए, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे है वमा कफर सुलेमाना, ये इनकार के लिए है। उसके बाद है आयातिल्लाही, अब ये पहचानना है, अलिफ लाम नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और अल्लाह ही हालत जर में है, तो कंफर्म है कि ये मुरक्कब इजाफी हो गया। उसके बाद है मसाजिद अल्लाही, मुरक्कब इजाफी है। वक़ाल अल मलाउ, जुमला फेलिया है, हाँ जुमला है, ये जुमला कौन सा है? जुमला फेलिया है, फेल है,
اور الملأ یہ اس میں ظاہر حالت رفع میں ظاہر آیا ہوا، یعنی کہ سرداروں نے کہا. سردار کہا. حد اللہ جملہ فعلیہ اللہ اچھا نے یہ ہدایت جملہ فعلیہ ہے. تو حد اللہ یہ کیا ہے؟ مرکب ہے کون سا؟ اضافی ہے سر. نیچے والا اضافی ہے سر، اوپر والا فعل ہے. 11واں والا اضافی ہے. اوپر والا فعل ہے. یہ فعلیہ ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے یہاں پہ ہا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہدا ہو گیا فعل، اور یہاں پہ جو حالت رفع میں ایک اسم آ گیا حد اللہ، یعنی کہ اللہ نے ہدایت دیا، اور یہ ہے ہا کے اوپر پیش حد اللہ حالت جر میں ہے اللہ کی ہدایت. حد اللہ کے معنی ہے اللہ نے ہدایت دیا، حد اللہ کے معنی ہے اللہ کی ہدایت. یہ دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد ہے سبیل اللہ، مرکب اضافی. مرکب اضافی معنی کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ. یہ بھی وہ ہے مرکب اضافی. ہاں مرکب اضافی. لعنت اللہ مرکب اضافی سر. مرکب اضافی اللہ کی لعنت. یہ بھی وہ ہے حدود اللہ. اللہ کی حد ہے. حدود اللہ نہیں، یہ مرکب حدود اضافی. اللہ. حدود اللہ اللہ کی حد ہے. اللہ کی حد ہے. اللہ کی حد. نصر اللہ نصر اللہ مرکب اضافی. کی مدد. اللہ کی مدد. مرکب اضافی یعنی کہ مرکب اضافی میں دو جز رہتے، پہلا رہتا مضاف اور دوسرا رہتا مضاف الیہ. تو نصر ہو گیا مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ. مضاف الیہ. اس کے بعد ہے کذبوا شعیبا. جملہ فعلیہ سر. جملہ فعلیہ. کذبوا ہو گیا فعل. اچھا چلیے آپ انہوں نے جھٹلایا ان سب نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. کذبوا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور جمع مذکر غائب کا جمع مذکر غائب صیغہ ہے. اس کے بعد ہے اتخذ الرحمن ولدا. جملہ فعلیہ سر. جملہ فعلیہ ہے سر. رحمان مفعول. اتخذ فعل ہے، رحمان اس میں ظاہر فاعل ہے، حالت رفع میں ولدن مفعول ہے. رحمان نے بنا لیا بیٹا. بیٹا. اس کے بعد ہے مکر اللہ. جملہ فعلیہ ہے سر. اللہ نے چال چلی. مکر اللہ. یہ مکرہ میم پہ زبر ہے، کاف پہ زبر ہے اور را پہ زبر ہے، تو یہ بناوٹ کے اعتبار سے فعل ہو گیا اور فعل ماضی ہو گیا. تو مکرہ یعنی کہ اس نے تدبیر کیا. اس نے اللہ حالت رفع میں ہے تو اللہ نے تدبیر کیا. مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کیا. اگر اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اگر ہم دیکھیں گے مکر اللہ، تو تب کیا ہو جائے گا؟ ہاں اللہ کی تدبیر. مکر اللہ یا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر. مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کیا. تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. 19 نمبر سمع اللہ. جملہ فعلیہ سر. اللہ نے سنا. اچھا اللہ نے سنا. سمیع اللہ. اب کیا معنی ہو جائیں گے؟ سمع حامد. حامد نے سنا. سنا گیا. مجھول ہو گیا. مجھول ہو گیا، پیسو ہو گیا. سنا گیا حامد. حامد کو سنا گیا. سنا گیا حامد. بہت اچھے.
उसके बाद है खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन, जुमला अल्लाह ने पैदा की अल्लाह ने पैदा बनाया सात आसमान सात फेलिया है आसमानों जुमला को। फेलिया जुमला फेलिया है, खलक़ फेल है, अल्लाहु हालत रफा इसमें जाहिर है, फाइल है, सबअ समावातिन ये हो गया मफूल, सबअ समावातिन। अच्छा ये देखिए सित्तति अय्यामिन मौसूफ सिफत सबअ है समावातिन, ये दो मुरक्कबात हमको मिले ये पूरे स्लाइड्स के अंदर, सित्तति अय्यामिन यानी कि 6 अय्याम, और सबअ समावातिन सात आसमान सात आसमान। तो जैसा भी ये गिनती वाले अदद वाले जितने भी मुरक्कबात आते हैं उनका नाम लिख के रखिए, ये है मुरक्कब अददी। कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब अददी। उसके बाद है नेमत अल्लाह। अब ये क्या है? अल्लाह की नेमत, मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, नेमत और अल्लाह ही हालत जर है, नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत। नेमत। समी अल्लाह मतलब अल्लाह ने सुनाना, समी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। तो ने आया तो क्या कौन सा आएगा? ने आया तो जुमला फेलिया। ठीक है सर सबा समावातिन में समावातिन कौन सी हालत में सर? समावातिन कौन सी हालत में सर? हालत जर में या हालत नसब में सर? हालत जर है, हालत जर, हालत जर है ना सर? ठीक, हालत जर में है। ये मुरक्कब अददी खाली नाम है, हमारे लिए आसान, ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि, मुजाफ और ये मुजाफ इलैहि। मुजाफ इलैहि हमेशा क्या रहता? हालत जर में रहता। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक की स्लाइड्स हमने आसमानों ट्रांसलेशन से इसका आसमानों को नहीं, 7 आसमानों को, ये दोनों मिलके एक यूनिट हो गए ना, 7 आसमानों को। जी चलिए अब इसके आगे हमको कल से इंशाल्लाह यहाँ से आयतें हमको ट्रांसलेशन करना है, तर्जुमा इसका करना है और प्रैक्टिस करना है हमको फेल, फाइल, मफूल, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया की। तो यहाँ तक का जो कुछ हमने पढ़ लिया है, इसमें किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, कोई डाउट है या कुछ सवाल है तो पूछिए। भेज दिया ग्रुप में, इसका पीडीएफ भी भेज दिएगा ग्रुप में, आप डाउनलोड कर लीजिए। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, कोई भी डाउट हो या कोई सवाल हो। सर हमारा नाम नहीं है क्या ग्रुप में सर? हम है हमारे नाम है, पास पीडीएफ वगैरह नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहे सर। अच्छा आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड है? मगर मेरे पास तो नहीं आ रहे सर वो, आप तो अच्छा बोल वो रहे ग्रुप, हाँ घर में किसको बोलिए, वो ग्रुप का नाम हिदाया अक्टूबर बैच बोल के है, वो नीचे चलेगा होगा इधर उधर लिस्ट में, तो वो देखने लगाइए, किसको घर में ढूंढने लगाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा ये रोज जो क्लास ज्वाइन करते हैं आप, वो कहाँ से कैसा करते हैं आप? खाली वो लिंक से कर रही मैं। हाँ वो लिंक कहाँ से मिलते हैं आपको? हिदाया में मिलते ना, तो उसमें जा रहे क्या? उसमें डाले क्या? हाँ उसमें पीडीएफ है, उसी में उसके अंदर पीडीएफ वगैरह डालते रहते जी। हेलो सर। और कुछ सवाल? जी सर ये जो आपने पीडीएफ भेजे थे ना पहले बुक का, अरबिक वर्ब पास्ट टेंस वाला, उसका काफी फायदा हो रहा है, मतलब उसको मैंने हार्ड कॉपी में लिया, उसको निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्रैक्टिस करने के लिए काफी आसान हो रहा है और बढ़िया से प्रैक्टिस भी हो रही है। तो सर ये जो इसमें मौसूल टॉपिक सिखा रहे ना सर, तो वो बुक में अवेलेबल नहीं है इसमें मौसूल वाला? वो इसमें मौसूला और काना अफाल नाकिस है, यानी ये दोनों के लिए अलग से पीडीएफ सर भेजने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा तो सर प्लीज अगर आप कर सकेंगे तो ये मदीना बुक के पार्ट 1, 2, 3 प्लस ये दो एक साथ भेज दीजिए सर, फायदा हो जाएगा काफी। इंशाल्लाह जी जी भेज देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर।
जी, और कुछ पूछना है किसी को? ना ये क्या ट्रांसलेट होगा ये समझ सर शिबु जुमला उसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। शिबु जुमला जी। जुमले दो किस्म के हैं, एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फेलिया। जी ठीक है जी। जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा खबर और मुतालिक खबर है जी। जुमला फेलिया के अंदर फेल फाइल मफूल और मुतालिक फेल है जी। तो एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो दोनों जुमलों में आ रहा है। जी आपने गौर किए मुतालिक फेल या फिर मुतालिक खबर खबर। जी जी सर। ये दोनों जुमलों के अंदर आ रहा है, एक जुमला इस्मिया के अंदर भी है और जुमला फेलिया के अंदर भी है। ये जो मुतालिक फेल या फिर मुतालिक खबर, ये कौन से लफ्ज को कहा जाता, ये कौन से मुरक्कब को कहा जाता? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी यानी कि हरफे जर के साथ जो इसमें मजरूर, ये दोनों मिलके जो एक मुरक्कब बन जाता, इसको बोला जाता मुरक्कब जारी। तो ये मुरक्कब जारी ही एक ऐसा मुरक्कब है, एक ऐसी फ्रेज है जो दोनों जुमलों के अंदर मुतालिक के तौर पे काम करती, मुतालिक फेल या फिर मुतालिक खबर। और यही मुतालिक फेल या मुतालिक खबर को अगर सेपरेटली अगर इसमें मौसूला के बाद लिखा जाए तो वो हो जाता शिबु जुमला। जी सर। अभी जो आया था ना सर पिछले स्लाइड में, हाँ जो पिछले स्लाइड में आया था लहू मा फिस अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी समावाति व लहू मा मा फिल फिस अर्द। समावाति व मा फिल अर्द। जी सर जी समझ तो में आ ये गया सर। जज़ाकल्लाह। सर जिसमें शुबा हो वो है क्या? हाँ जी, और एक जुमला भी था जी। शुबा, जुमले की शुबाहत है, शुबा नहीं है उसमें, शक शुबा नहीं है, जुमले की शबाहत है। एक और जुमला था जो स्लाइड्स में हमने पढ़े, अल कल्बु। क्या था वो जुमला? अल कल्बु फिल हदीकती। क्या था उसकी तारीफ में? अच्छा बीमार है, बीमार। हाँ मरीजुन। मरीजुन। अल कल्बु फिल हदीक अल्लज़ी फिल हदीकती मरीजुन। तो ये जुमले के अंदर जो अल्लज़ी इसमें मौसूला के बाद जो आया फिल हदीकती वो है मुरक्कब जारी, तो वो हो जाता शिबु जुमला। शिबु जुमला। जी सर। मुरक्कब जारी। मुतालिक खबर कब बनता सर? खबर के मुतालिक खबर, हाँ इसको बोलते हैं ना। अच्छा हाँ मुतालिक खबर, यही फ्रेज, यही मुरक्कब जारी जब जुमला इस्मिया में आता तो नाम बदल जाता मुतालिक खबर, और वही मुरक्कब जारी जब जुमला फेलिया में आता तो नाम बदल जाता उसका मुतालिक फेल। तो ये एक ऐसा मेहमान है जो दुल्हन वालों की तरफ से भी है, दूल्हे वाले की तरफ से भी है। उधर गया तो उनका हो गया, इधर गया तो इनका हो गया, आता भी इखलास के साथ, जाता भी इखलास के साथ। हाँ, और खबर जब नहीं रहती, मेहमान नहीं रहती, तो इन्होंने स्पेशल मेहमान बन के बच जाते, कायम मुकाम खबर। मुकाम खबर जो रही थी सर, शिबु जुमला कुछ कायम मुकाम खबर बोलते। हाँ कोई मेहमान नहीं है तो, हाँ तो कोई भी नहीं है अब मेहमान, तो उसको बिठा दिए, चलो भाई आ जाओ आप। अच्छा तो मेहमान की शबाहत उन्होंने जैसा शेरवानी वेरवानी पहन के बैठ जाए। सर जुमले में खबर है मौजूद, और फिर ये दूसरी जो खबर है मजरूर खबर, ये उस वक्त क्या बोलेंगे उसको? उस वक्त बोलेंगे मुतालिक खबर। मुतालिक खबर। हाँ, और खबर नहीं रही तो कायम मुकाम खबर शिबु जुमला। हाँ खबर नहीं रही तो शिबु जुमला। हाँ जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा समझाया सर। अल्लाह आपको मन्ना पूरी करे आपके सर, बहुत अच्छा समझाया। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सब के पढ़ने पढ़ाने को कबूल करे, हमारी तमाम लफ्ज़िशों खताओं को माफ करे अल्लाह, हम सब की बख्शिश कर दे अल्लाह ताला। आमीन। और खास तौर पे ये दुआ है, हम दुआ करेंगे कि दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को खत्म फरमाए, तमाम तकालीफ को खत्म फरमाए। आमीन। और हमारे नांदेड़ शहर के करीब में तेलंगाना स्टेट में एक
कामारेड्डी एक शहर है जहाँ पे बारिश की वजह से सैलाब आया, वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश हम सबको नाजिल फरमाए, रहमत वाली बारिश नाजिल फरमाए, किस्म के नुकसान से हम सबकी हिफाजत फरमाए। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हाल है, उन तमाम की परेशानियों को दूर करे अल्लाह। और जो बिला वजह जो गैर जरूरी मुकद्दमात में जो परेशान है, खास तौर पे मुसलमान नौजवान, अल्लाह ताला उन सब की रिहाई के फैसले फरमाए जल्द से जल्द, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला जान माल की हिफाजत फरमाए और जिन जहां जहां जगहों पे मुसलमानों को तकलीफ परेशानी हो रही है, अल्लाह ताला उन सब की तकलीफ को खत्म फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और सब्र के साथ हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। और खास तौर पे अल्लाह ताला हम सब की औलाद को हमारी आंखों का ठंडक बनाए, हमारी औलाद का बेहतरीन मुस्तकबिल बनाए दुनिया और आखिरत में। चलिए रुकेंगे आज यहाँ पे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाहु खैरन वालेकुम कसीरन। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपके पढ़ाने को अल्लाह कबूल फरमाए।